Okay, last time we were discussing about the liquid solution, because liquid vapor solution or liquid gas solution we have already discussed. In liquid solution, three common things we have to learn. First, what is vapor pressure, because this term is very common in every liquid solution. And second topic is vapor pressure in a pure state and the vapor pressure in a combined state, that is also called partial vapor pressure. And the fourth thing is a Raoult's law. Okay, now first is vapor pressure. What is vapor pressure? So before discussing the vapor pressure, we first know how the vapor develop. We take a liquid in a container, closed container. We take a liquid in a closed container. On heating is what happened. This is the liquid. When we start heating this liquid, what happens, sir? This will convert into the vapor phase. This is the vapor phase. I am just writing here liquid. This is the vapor phase. And there is an equilibrium, because when you just start heating liquid, this liquid convert into the vapor. A time come when the number of molecules of a liquid will equal to the number of molecule of the vapor phase, So when we start heating this liquid, this will convert into the vapor. Okay, so this is called vaporization. This is called vaporization. Now if the liquid will convert into the vapor phase, this is the empty part. This is the empty part in a container, which is occupied by the vapor or gases, you can say. Okay, gases phase. This vapor not only exert the pressure at the top, but also at each corner and each side of that empty surface above the liquid. Okay, now this vapor which exerts the pressure over the liquid surface, this vapor which is developed by the evaporation of liquid on a liquid or over the liquid surface is called vapor pressure. In common, I am again repeating the proper definition of vapor pressure. What is vapor pressure? When we heat liquid convert into the vapor phase at a time when equilibrium is set up in between liquid and vapor phase. That time the pressure exerted by the vapor on a liquid surface is called vapor pressure. Or the vapor pressure is what? Pressure exerted by the vapor over the liquid surface at equilibrium is called vapor pressure. Okay, this is the liquid and this is the vapor phase. Done? This was the vapor pressure. What is the vapor pressure in a pure state? Suppose we have two volatile liquid, liquid A and liquid B. These are the two volatile liquid. Why volatile liquid? Because without volatile liquid, the evaporation cannot take place. Water volatile liquid which can easily be converted into the vapor. Like water at 100 degrees Celsius temperature, the water convert into the vapor phase, yani steam, you can say. Similarly, at 78 degrees Celsius temperature, the ethanol is converted into the vapor phase. So these are volatile liquid because these are heating convert into the vapor phase, right? So suppose two liquid A and B I am taking for the discussion. Okay, take a container. It is also a closed container. This is the liquid A. I am separating through this line. On heating this liquid A, what happened? This liquid convert into the vapor phase. This is vapor of liquid A. Vapor of liquid A. Okay. Now, in this particular place, at this particular place, only the vapor of A will be present. It means the pressure developed by A will be the P naught A. This is the vapor pressure of liquid A in a pure state. इसका मतलब P naught represent the purest state. Similarly, अगर हमने B liquid लिया, if I am taking liquid B, it will always also convert into vapor phase. It will also convert into vapor phase. When it will convert into the vapor phase, it again convert exerted pressure on the liquid. This will again exert pressure on the liquid surface. It means this is the vapor pressure of B in a pure state. This is a P naught B. यानी कहने का मतलब अगर दो लिक्विड अलग अलग ले लिए जाएं
और उन्हें वेपराइज किया जाए तो उनके वेपर द्वारा लिक्विड पर डाला गया जो प्रेशर होगा वो कहलाएगा वेपर प्रेशर इन अ प्योर स्टेट। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय पी नॉट। अगर ए लिक्विड है तो पी नॉट ए, बी लिक्विड है तो पी नॉट बी। क्लियर? अब क्या है वो पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होता है? आर द वेपर प्रेशर इन ए कंबाइंड स्टेट। सपोज फिर मैंने एक क्लोज कंटेनर ले लिया, यहाँ पे दो लिक्विड ले लिए ए और बी, दोनों को हमने हीट किया। जब दोनों को हीट करेंगे तो क्या होगा? ए भी कन्वर्ट होगा और बी भी कन्वर्ट होगा। वेपर फेज में ए और बी दोनों वेपर फेज में कन्वर्ट होंगे। तो जब ए और बी दोनों वेपर फेज में कन्वर्ट होंगे तो यहाँ पर दो प्रकार की वेपर होगा, वी और वी बी। वेपर ए, वेपर बी। तो यहाँ पर जो कंटेनर का रिमेनिंग पार्ट है जहाँ गैस कंटेन हो रही है, यहाँ पर प्रेशर सिर्फ एक गैस का नहीं होगा, यहाँ दोनों गैस का प्रेशर होगा। तो टोटल वेपर प्रेशर हो जाएगा पीटी। इस पार्ट पे टोटल वेपर प्रेशर हो जाएगा पीटी। और ये टोटल वेपर प्रेशर जो है वो किसके बराबर होगा? इसके पार्शियल प्रेशर और इसके पार्शियल प्रेशर, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए के और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के। यानी टोटल वेपर प्रेशर के लिए किसी इंडिविजुअल गैस का मतलब लिक्विड से कन्वर्ट हुई वेपर का, ठीक है, किसी टोटल प्रेशर के लिए किसी इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर होगा कंबाइंड स्टेट में वो पार्शियल प्रेशर होगा। क्लियर? क्लियर? अगर फिर से हम कंपैरिजन करें दोनों को, प्योरेस्ट में कोई एक ही लिक्विड होगा जिसे वेपर में कन्वर्ट किया जाएगा। अगर वो वेपर हम बात करें तो प्योरेस्ट स्टेट में पी नॉट ए होगा, ठीक है, या पी नॉट बी होगा। लेकिन अगर ए और बी दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो कंबाइन करने पर क्या कंडीशन आ रही होगी? कंबाइन करने पर ए और बी लिक्विड दोनों कंबाइंड हो गए। अब जब हमने उसको वेपराइज किया तो वेपराइज करने पर वेपर फेज में दोनों की वेपर होगी, ए की और बी की। तो इस जो ये रिमेनिंग पार्ट है जहाँ पर लिक्विड कंटेन नहीं कर रहा है, उस पार्ट में ए का भी प्रेशर होगा, बी का भी प्रेशर होगा। तो टोटल प्रेशर के लिए जो ए का और बी का प्रेशर अब आ रहा है उसे हम पार्शियल प्रेशर कहेंगे। यानी टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी। कोई दिक्कत तो नहीं? ये होता है पार्शियल। तो मैं फिर से अपनी बात को वो रिपीट कर दे रहा हूँ। पहला वर्ड आया कि वेपर प्रेशर क्या होता है? जब किसी लिक्विड को हम वेपराइज करते हैं यानी हीट करते हैं तो वो वेपराइज होता है। जब वेपराइज होगा तो वो एक प्रेशर डालेगा लिक्विड के सरफेस पे, उसे वेपर प्रेशर कहेंगे। प्योरेस्ट फॉर्म में यदि किसी भी चीज़ को किसी भी लिक्विड को हीट करेंगे और वेपर में कन्वर्ट होता है तो उसके द्वारा डाला गया प्रेशर किसी लिक्विड सरफेस पर प्योरेस्ट फॉर्म में वेपर प्रेशर कहलाएगा, जिसे पी नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो भी लिक्विड उसके अकॉर्डिंग पी नॉट ए, पी नॉट बी आप कर दीजिए। लेकिन जब दो लिक्विड कंबाइंड हो जाएंगे और फिर हीट करेंगे तो जो मिक्सचर का वेपर प्रेशर आएगा, मिक्सचर का टोटल वेपर प्रेशर आएगा, वो इंडिविजुअल गैस के प्रेशर के सम के बराबर होगा। जो इंडिविजुअल गैस का प्रेशर होगा वो पार्शियल प्रेशर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पार्शियल प्रेशर। इसे पी ए और पी बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इतने में कोई दिक्कत तो है नहीं। इसके बाद आपको इतना बता देते हैं कि होता ये है कि लिक्विड सोल्यूशन में हमें तीन प्रकार की चीज़ों को डिस्कस करना है। जब प्रेशर बढ़ जाए या प्रेशर घट जाए, जब प्रेशर पे कोई चेंज ना हो। ये तो सीधा सा फंडा है कि अगर दो लिक्विड कंबाइन किए जा रहे हैं तो कंबाइन करने पे ये भी हो सकता है कि वो लिक्विड जैसे थे वैसे ही बने रहें, उनके वेपर फेज में कोई चेंज ना हो। जैसे लिक्विड फेज में तो वैसे ही वो वेपर फेज में बने रहें। दूसरे टाइप के लिक्विड वो हो जाएगा जब कंबाइन कर दिए जाएँ और कंबाइन करने के बाद इंट्रैक्शन कुछ बढ़ जाए, फोर्स अट्रैक्शन बढ़ जाए, तो वो एक अदर कंडीशन हो जाएगी। तीसरी कंडीशन क्या आ जाएगी कि जब कंबाइन करने पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाए। तीन कंडीशन, पहला मिक्स करने पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन इंट्रैक्शन पे कोई चेंज ना हो, जैसे पहले थे वैसे ही बाद में हो जाए। दूसरी कंडीशन क्या थी? कंबाइन करने पर जब वेपर फेज में जाए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाए। तीसरी कंडीशन क्या थी? कंबाइन करने पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाए, एक में बढ़ जाए, एक में घट जाए, एक में कोई चेंज ना हो। तो ये तीन प्रकार के डिस्कशन से हमारा आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इसको हम आपके कल के लेक्चर में डिफाइन कर रहे होंगे। अब एक और आ गया वर्ड राउल्ट्स लॉ की। राउल्ट्स लॉ क्या होता है? तो राउल्ट्स लॉ का मतलब हो गया किसी भी लिक्विड का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसी भी लिक्विड का जो पार्शियल प्रेशर होता है उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी P, अगर एक लिक्विड A है तो PA प्रोपोर्शनल टू P नॉट A, PA इज इक्वल्स टू P नॉट A, सॉरी
पी ए प्रिपोर्शनल टू एक्स ए, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रिपोर्शनल होता है। पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। ये प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर हो गया और ये पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड ए हो गया। तो राउस ने क्या किया, किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा।